Hello everyone. So today we are going to start new chapter in physics, that is chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. And before we start this chapter, we need to understand few fundamentals from क्लास 11 जो वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर था उसमें से कुछ बात करेंगे. So let us consider that we have a stone, okay, which is there on ground, okay. So you can say that its height is 0, okay. Then after you are lifting this stone up to height h, so you can understand that the potential energy of this stone is now mg into h, okay. So over here, yeah, again at the same time its kinetic energy is 0, okay. Another thing is what happens if I will put this stone from h height, so there is a gravitational force and that will come, this stone will come down, okay. And at that time its potential energy is continuously decreasing and the kinetic energy is continuously increasing. We have also understood in 11th standard that the total of Ke plus Pe is constant, or we can say that it is always conserved, okay. So when we are saying that it is conserved, so these kind of forces are also known as conserved forces, okay, conserved forces, okay. So what are the examples of conserved forces? So we know that conserved forces are there, like we have a spring force, okay, we have a gravitational force, okay. So these are the example of a conserved force. One more important thing is there, that is अगर मैं ये स्टोन को पहले यहाँ से h वन हाइट पे लेके जाता एंड देन आफ्टर इफ आई विल ब्रिंग इट ओवर हियर, देन ऑल्सो द डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट, राइट. डिफरेंस मतलब कि इनिशियल में क्या था और फाइनली क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, दैट इज that doesn't make any difference. So we have to understand that potential energy में जो पाथ होता है, ओके, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. दैट मीन्स वी कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, ओके. मान लो कि आपको एक 10 kg का स्टोन है, आप उसको 10th फ्लोर पे लेके जाना चाहते हो, तो आप स्टेयर्स यूज़ करो, आप लिफ्ट में बैठ के जाओ, आप प्लेन में बैठ के जाओ, कुछ भी करो, लेकिन इम्पोर्टेंट इज के आप कौन से ग्राउंड, आई मीन ग्राउंड फ्लोर पे थे, एंड देन आफ्टर यू हैव रीच्ड to the 10th floor. So initial and final positions are important, not the way you have achieved it, okay. तो पाथ यहाँ पे ये पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाता है. दूसरी एक टर्म है that we would like to explain, that is द सिग्निफिकेंस और इंडिविजुअल वैल्यू. मान लो कि मैं आपको बोलूँ कि आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, ओके. खुशी हुई आपको, आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, राइट, ओके. बट अभी मैं आपको एक नेक्स्ट स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, बट बाकी सब जो भी है इस दुनिया में, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके पास, सबके पास 10 लाख रुपीज़ है. अभी कैसा लग रहा है? सो दैट इज व्हाट द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी है, वो मैटर नहीं करती है, बट इट इज द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विच मेक्स अ डिफरेंस. सो 10 लाख माइनस 1 लाख, सो 9 लाख का डिफरेंस है. दैट इज हाउ you will be considered as poor compared to your friends. So similarly over here PE important नहीं है, but the difference of PE is more if important, right, okay. तो यहाँ पे difference of PE हम उस टाइम पे दिखाते थे डेल्टा U से, okay. So you also have to consider this point, okay. So these are the fundamentals which were there in class 11, okay. अभी आते हैं class 12 पे. So in class 12, what are the conservative force, okay. So the force that we studied in first chapter of class 12, okay, that was Coulomb's force, okay. तो ये जो force है that is a conservative force, और उसके बारे में ही पूरा discussion है, right. So let us start our today's topic, okay.
So first line is there, consider an electrostatic field E ड्यू टू सम चार्ज कन्फिग्रेशन. अभी आपको तो मालूम ही है कि इफ देर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड देन इट मस्ट बी ड्यू टू सम चार्ज. कोई ना कोई चार्ज के कारण ही तो फील्ड होता है, राइट? तो यहाँ पे हमने बात सिंपल कर दी कि इट इज़ ड्यू टू सोर्स चार्ज क्यू. सो यहाँ पे मैं आपको ग्राफिक से दिखा रहा हूँ. ओके, सो लेट अस से दैट देर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू. अभी चार्ज कौन सा है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, राइट? ओके, बट इट इज source charge q and due to that there is a electric field. So you can imagine a electric field lines coming out radially in this case. Okay, now imagine that we bring a test charge q from a point r to a point p against the repulsive force. So what is this? Now you imagine that we have another charge, let us say it is small q. ये टेस्ट चार्ज है और ये अभी कहाँ पे है? सपोज इट इज लोकेटेड एट पॉइंट पी. ये जो लोकेशन है वो पॉइंट पी है. पी पे कौन है? चार्ज स्मॉल क्यू इज देयर. आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस चार्ज एट पोजिशन आर. लेट अस से इट इज आर. ओके, क्या करना है? इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आना है. ओके, बट over here whenever I am bringing it from P to R, there will be a repulsive force between the source charge and the test charge. तो ये टेस्ट चार्ज है और ये सोर्स चार्ज है, इनके बीच में रिपल्सन हो रहा है. अभी आप सोचो कि what might be the polarity of the source charge and the test charge. So you will say that they must be the like charges. Like charges मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि they must be either positive और दोनों है वो नेगेटिव होने चाहिए. So this will happen if capital Q and the small q are both positive और they both are negative. तो अभी के लिए हमारे डिस्कशन के लिए मैं इसको ले रहा हूँ पॉजिटिव. सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है और जो टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव है. सो यही फिगर मैंने अगेन यहाँ पे ड्रॉ की है एज पर बुक. ठीक है, सो आपको क्या करना है इसमें, जो सोर्स चार्ज है, सो यू टू शो बिट बिगर इन साइज. ओके, ये थोड़ा बड़ा है एंड इट कंटेन्स मच चार्ज. दिस इज स्मॉल चार्ज क्यू. ओके, तो यहाँ पे दो रिमार्क्स है. फर्स्ट रिमार्क इज दैट द स्मॉल क्यू is a small charge, okay, and it does not change the original configuration. इस बात का मतलब क्या है, ये सेंटेंस का मतलब क्या है? मान लो कि ये अर्थ है, ओके, एंड देर इज अ टेनिस बॉल. ओके, तो वी अंडरस्टैंड दैट के बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट्स देर इज अ अट्रैक्शन. बट ऐसा कभी नहीं होता है कि ये बॉल है वो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी वजह से अर्थ इज गोइंग टू चेंज इट्स पोजिशन एंड इट विल कम नियर टू द बॉल, राइट? इट इज द बॉल विच हैज टू कम टूवर्ड्स द अर्थ. वाई सो? बिकॉज द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ इज मोर. इसका मास है वो ज़्यादा है. Similarly over here when we are considering two charges, so over here there is a small charge and जो भी इफेक्ट आएगी वो पोजीशन की जो भी इफेक्ट आएगी वो इस स्मॉल चार्ज पे होगी. व्हेन यू आर ब्रिंगिंग इट अप, इसको आप पास लेके आ रहे हो तो इन दोनों के बीच में रिपल्जन हो रहा है. तो ये रिपल्जन से ऐसा कभी नहीं होगा कि ये जो सोर्स चार्ज है वो ही दूर भाग जाए. समझ में आ रहा है, राइट? ओके, सो दैट इज हाउ वी हैव कंसिडर दैट क्यू इज सफिशिएंटली small that it does not change the original configuration. ओरिजिनल कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है कि जो कैपिटल क्यू है सोर्स चार्ज है वो अपनी जगह नहीं बदल रहा है. ओके, नाउ if I want to bring this charge from position R to position P, then I have to do some work against the repulsive force.
आपके पास मान लो कि दो मैग्नेट है, दोनों के एन पोल है, वो दोनों अगर मुझे पास पास लेके आना है तो आई हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स, राइट? So over here I'll apply the external force to bring the charge Q from position R to position P, okay? और वो काम किसके अगेंस्ट में हम कर रहे हैं? So we are doing it against the repulsive force, repulsive external force. तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स के फोर्स हो गए, एक है एक्सटर्नल फोर्स और दूसरा है वो है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक, ओके? तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट? ओके, so what will be the relation? So you can understand that we are applying the external force such that it is against the electric force, right? तो यहाँ पे हमने ये नेगेटिव साइन रखा है, right? Okay, if I'll ask you how much is the net force on Q, how much is the net force on Q, तो आप बोलोगे ये दोनों तो सेम हो गए, इसको इस साइड ले लेते हैं तो नेट फोर्स विल बिकम जीरो। अभी आप सोचो कि F इक्वल्स टू एम ए के हिसाब से इफ द फोर्स बिकम जीरो, मास तो जीरो है नहीं, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑन चार्ज Q कितना होगा? एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो। इफ एक्सेलरेशन इज जीरो देन आई कैन से दैट द ऑब्जेक्ट और से द स्पीड ऑफ द चार्ज इज कितनी होगी? वो इट विल बी constant, okay? If acceleration is zero then the object is moving with a constant speed, right? Now that means the work done by the external force and gets fully stored in the form of potential energy of the charge Q. क्या मतलब है इसका? कि बाहर से जो भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है और उसके कारण जो भी वर्क डन हुआ, दैट एवरीथिंग गेट्स स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन द चार्ज Q. आप ऐसा इमेजिन कर लो कि यहाँ पे हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है? अभी स्प्रिंग है वो नॉर्मल पोजीशन पे है, राइट? ओके, इफ आई एम गोइंग टू गिव सम एक्सटर्नल फोर्स लाइक दिस, ओके, then you can say that now the energy has been stored in the spring, और ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। सो द होल वर्क डन इज नाउ यूटिलाइज्ड और गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, राइट? ओके, सो ओवर हियर what happens, what happens if this force is removed? अगर मैं यहाँ से ये एक्सटर्नल फोर्स है जो मैंने फिंगर्स रखी है वो मैं रिमूव कर दूँ तो क्या होगा? धीरे धीरे रिमूव करेंगे, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट अगेन द स्प्रिंग विल बी बैक इन टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। सो सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर, दैट सपोज वी हैव बॉट द चार्ज Q फ्रॉम R टू P, यहाँ पे हमने उसको पकड़ के रखा है, ठीक है? एक्सटर्नल फोर्स इज स्टिल देयर, और जैसे ही हमने यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स ले लिया, सो अगेन द स्मॉल चार्ज Q विल बी बैक्ड टू पॉइंट R, ठीक है? तो ये उसका रिस्टोरिंग एक्शन होगा, राइट? ओके, नाउ it's time to calculate, okay? So thus work done by the external force in moving a charge Q from R to P, हमें क्या करना था? R to P मूव हुआ था, राइट? ओके, सो वर्क डन को हम दिखाएंगे WRP कैन बी गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ R to P, पॉइंट R to पॉइंट P। कितना फोर्स था? देखो, वर्क डन इज लाइक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो हियर इज द फोर्स एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, okay? So that can be expressed like this. Now we know that Fx is equals to the electric field minus of electric field, तो मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू रख दी, and that is how I am going to get this equation. So what is conclusion over here? That work done is against the electrostatic repulsive force and it gets stored as PE, right? Okay, यहाँ पे माइनस साइन है, सो वर्क डन इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट? अभी बात करते हैं डिफरेंस की, ओके? सो मान लो कि व्हेन द चार्ज वाज एट पॉइंट P, एट दैट टाइम द पोटेंशियल एनर्जी वाज UP. When it was at point R, at that time its energy is UR, and difference of this is to be denoted as delta U. तो delta U and WRP, वर्क डन RP, दोनों सेम है।
तो इसके हिसाब से एक डेफिनेशन हम बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, डिफरेंस वाली डेफिनेशन है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एज द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग a charge q from one point to another point of any arbitrary charge configuration, right? So that is already discussed. तो इसमें पहले से ही हमने ये तो डिस्कस किया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट इज द इट शुड बी लाइक काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है तो वो एक इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ से होती है। मतलब ये है कि ये आपका सोर्स चार्ज था Q, दिस वॉज अ स्मॉल चार्ज टेस्ट चार्ज Q, ओके। आई कैन ब्रिंग इट थ्रू वेरियस वे, मैं यहाँ से यहाँ भी लेके आ सकता हूँ, यहाँ से घुमा के भी लेके आ सकता हूँ, कोई भी पाथ आप चूज करो, बट द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशंस आर इम्पोर्टेंट। कौन से रास्ते से आप चार्ज को लेके आए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सो दैट वाज द पॉइंट रिलेटेड विद द इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। सेकंड पॉइंट जो हमने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया था, डिफरेंस ऑफ पी ई इज आई एम पी, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिविजुअली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इज पीई जीरो कौन से पॉइंट पे होती है, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चार्ज की जीरो कब होती है। सो सी वी कैन टेक एनी पॉइंट, बट यहाँ पे हम ले रहे हैं एक कन्वीनियंसी के हिसाब से, पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्फिनिटी पे जीरो होगी, दैट इज व्हाट वी आर कंसिडरिंग। मतलब कि चार्ज पहले इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है तो वहाँ पे उसकी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, एंड एज वी आर ब्रिंगिंग इट टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग। सो उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया है, W इन्फिनिटी P, मतलब कि इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल्स टू UP माइनस U इन्फिनिटी, बट यू नो दैट U इन्फिनिटी इज जीरो एंड दैट इज हाउ W इन्फिनिटी P इज इक्वल्स टू UP, राइट। तो अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन की अकॉर्डिंग टू द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस। सो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज Q एट अ पॉइंट, यहाँ पे एट अ पॉइंट हमारा क्या था, P पॉइंट था, एट अ पॉइंट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। तो इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट को अगर हम किसी भी चार्ज को हम P पॉइंट पे लेके आते हैं तो उसके लिए जितना भी वर्क डन करना पड़े दैट इज इट्स potential energy. Okay, so that's all for today. Thank you so much.